Good morning, dear students. Neha ma'am here. So today we have to start new chapter of class 7 maths. Chapter number 12, algebraic expressions. So before starting algebraic expression exercise 12.1, first we will discuss main concept of algebraic expression. We will know about the term algebraic expression. So, algebraic expression are formed from variable and constant. algebraic expression किससे बने होते हैं? वेरिएबल से और कांस्टेंट से. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मीन्स variable alphabet from A to Z. Any alphabet from A to Z is known as variable. Unknown value we have to find. Okay. Constant means number. Okay. Any constant value means number. Okay. Now we use the operation of addition, subtraction, multiplication and division on the variable and constant to form expression. अब हमें अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो उस एक्सप्रेशन के लिए हमें ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे मैथमेटिकल. व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस? मेनली फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड वी हैव टू अप्लाई ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट to form our expression. Okay, for example, if we have taken the expression 4xy plus 7, अगर हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया है 4xy plus 7. ओके, अब आप पहले ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है किससे फॉर्म्ड है? यहाँ पे आपका वेरिएबल्स भी हैं, ओके, और यहाँ आपके कांस्टेंट भी हैं. अंडरस्टूड? सो algebraic expression is formed from variable and constant. Okay. The expression 4xy plus 7 is formed from the variable x and y. यहाँ वेरिएबल क्या है? a से लेकर z तक के बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट है? x and y. They are variable and the constant is 4 and 7. और constant क्या है यहाँ पे? 4 and 7. I hope you have understood till here. The constant 4 and the variable x and y are multiplied. अब ये देख रहे हैं, ये 4xy लिखा है, यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x and y are the two variables and 4 is a constant here. They are multiplied. Multiplied means if between a constant and variable you don't have any sign, it means which sign is present in between? X is present in between the variables and the constant. Okay, and multiply means product. It means constant and variables are multiplied to give the product 4xy. Okay, and the constant 7. और आपने देखा होगा इसमें जो आपका constant 7 है, 7 they are added to this product. इस product में ये 7 add हुआ है, ठीक है, and together they form expression. और together मिलके इन्होंने क्या बना लिया है? expression. Hope you have understood. You have a rough idea. Now, expressions are made of terms. एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? टर्म्स के. ये क्या, इन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म. अब ना व्हाट इज टर्म? आप पहले आप टर्म समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में. टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स फॉर्म्ड होते हैं वेरिएबल से और कांस्टेंट से. ओके, वेरिएबल को हम लिटरल पे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिटरल. वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज लिटरल. ओके, वेरिएबल को हम बोलते हैं लिटरल. चलिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो टर्म्स से बना है? तो उसमें टर्म्स कौन सा है? देखिए, टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए, अगर आपके पास कोई भी, सपोज करिए 4x है, 4 है और ओनली x है. आप डिफरेंस देखना, दिस इज ओनली वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट, दिस इज ओनली कॉन्स्टेंट. अगर हम ये कहें इसमें टर्म्स क्या हैं? टर्म तो हमने अभी बताया था, टर्म इज फॉर्म व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ आर देयर, यही बोला था. तो क्या ये आपका टर्म है? आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. अपने आप से पूछिए, दिस इज अ टर्म और दिस इज अ टर्म. क्या x टर्म है, 4x टर्म है या 4 टर्म है? इनमें से कौन सा टर्म है? हैव यू गॉट योर आंसर? ओके, नाउ लिसन द सॉल्यूशन. देखिए, if you are saying that only 4x is term because
it is made up of variable and constant, and x and 4 is not term, then you are wrong. Okay, why you are wrong? If you are saying that all are term, then you are correct. Why? All three are terms. Why all three are terms? Because I have told you terms are made of constant and variable. constant और variable के बने होते हैं terms. अब आप कहेंगे कि पहले वाले में तो variable है, इसमें कांस्टेंट कहाँ है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता, इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट 1. ठीक है, तो आपका आप देखिए ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है, तो इट मीन्स एक्स इज ऑल्सो द 1x इज ऑल्सो द टर्म, तो ये आपका क्या कहलाता है? टर्म. ओके, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ 4x है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली आपको शोन है कि यहाँ 4 कांस्टेंट है, यहाँ ये आपका क्या है? वेरिएबल. और टर्म किससे बनता है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से. ओके, यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी सिंगल कांस्टेंट है तो ये मान के चलिए, एज्यूम करके चलिए कि उसके पास कोई भी वेरिएबल है, ए से लेकर जेड तक का कोई भी वेरिएबल है जो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0 है, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1. किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये ध्यान रखिए कि अगर आपका सिंपल एक्स है, वेरिएबल है, तब भी वो टर्म है, नंबर और वेरिएबल है तब भी टर्म है, और खाली वो नंबर है तब भी टर्म है. तो टर्म्स, तो यानी कि यहाँ कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. 4xy प्लस 11, यानी कि कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, 4xy एंड 7. ओके, अब आगे आइए. एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स. टर्म्स आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशन. टर्म्स को हम ऐड करते हैं जिससे हम एक्सप्रेशन बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, द एडिशन ऑफ द टर्म 4x + 7 गिव्स द एक्सप्रेशन. जब हम टर्म्स को मिला के उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है. ओके, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. और टर्म्स कैसे बनता है? फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है. फैक्टर्स का प्रोडक्ट मतलब 4xy. इसमें अगर हम इसे फैक्टर करें, अलग करें, तो हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं? 4 अलग कर सकते हैं, x अलग कर सकते हैं, y अलग कर सकते हैं. तो हमारा जो टर्म होता है वो प्रोडक्ट है फैक्टर्स का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. द टर्म 4xy इन द एक्सप्रेशन 4xy + 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ x, y एंड 4. फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल आर सेट टू बी अलजेब्रिक फैक्टर्स. और जो फैक्टर्स हमारे इस वेरिएबल में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स. ओके, ना 4th पॉइंट, द कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर. अब जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर इंटर टर्म होता है, यानी कि हमारा 4xy है, ठीक है, हमारे क्या है? ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. ओके, समटाइम एनी वन फैक्टर इन अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म. और कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई भी एक एनी वन फैक्टर इन अ टर्म, कोई भी टर्म में अगर कोई भी हम एक फैक्टर ले लें तो वो हमारा बाकी का कोफिशिएंट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 4xy है, ठीक है, अगर मैं अभी ये बात बोलूँ कि y को छोड़ के बचा हुआ कितना कोफिशिएंट पार्ट है, मैंने ये चीज़ बोल दिया कि y को छोड़ के, तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी वेरिएबल की बात करूँ तो ये याद रखना, जिसे छोड़ के बोलूँ, मैं कहूँ, अगर मैं कहती हूँ कि y का कोफिशिएंट क्या है, मैंने y का पूछा, तो y को छोड़ के जितना भी आपका बचा हुआ पार्ट है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर मैं बोलती हूँ कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट का मतलब x को छोड़ के, यानी कि x को छोड़ के क्या है? 4y, तो आपका इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 4y. ओके, अगर मैं बोलती हूँ xy का कोफिशिएंट क्या है, तो आप xy को छोड़ के क्या बताएंगे? 4 इसका कोफिशिएंट है. अंडरस्टूड. चलिए, अब यहाँ आइए आप, एनी एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म. अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए, अब हम इनकी सब डिवीज़न पढ़ रहे हैं. अगर किसी एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म होगा, ठीक है, टर्म्स मैंने अभी बताया था, ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 2 टर्म्स हो गया. तो ये बोल रही है अगर एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे उसे पॉलिनोमियल कहेंगे. स्पेशली अ 1 टर्म एक्सप्रेशन इज मोनोमियल. अगर सिर्फ 1 टर्म होगा तो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म एक्सप्रेशन होगा तो बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहलाएगा. ओके, तो अब देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ देखिए, इस एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, 1 टर्म यहाँ देखिए ओनली 7xy है, एक ही टर्म है यहाँ पे. तो दिस इज अ टर्म. कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके, तो ये क्या है? मोनोमियल एक्सप्रेशन है. अब यहाँ देखो बाइनोमियल किसे कहते हैं? 2 टर्म है, देखो एक x है,
एक वाई है। मैंने आपको टर्म्स तो बता दिए, टर्म्स क्या होता है, टू टर्म के बीच में ऑपरेशन यूज है, 3x और z भी टू टर्म है, ऑपरेशन यूज है, तो दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा है, 3 टर्म है, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और बीच में ऑपरेशन अप्लाई है, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ देखिए 1 टर्म 3x स्क्वायर 5x सेकेंड टर्म 2 थर्ड टर्म और बीच में इनका एक्सप्रेशन अप्लाई है, माइनस और प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई, इट मीन्स कितने टर्म है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये क्या हो गया एक्सप्रेशन आपका ट्राइनोमियल। और अभी हमने ये बात पढ़ी थी, अगर एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म होंगे, एक से ज़्यादा टर्म होंगे वेरिएबल में 1 और मोर टर्म, तो उसे हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल हम मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल किसके अंडर आते हैं, ये सारे किसके कैटेगरी के अंडर आते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। यानी कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये सब किसका सब डिवीजन है, पॉलिनोमियल में। लेकिन जब हम बोलते हैं अगर 1 टर्म होगा तो मोनोमियल बोलेंगे उसे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल मिलेंगे, और 3 से ज़्यादा टर्म है अगर आपके एक्सप्रेशन में तो आप उसे बोलेंगे हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर आपने बोल दिया 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म को अगर आपने नॉर्मल बोल दिया पॉलिनोमियल, क्योंकि वो पॉलिनोमियल के पार्ट्स हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ देखिए हमने ये सब पढ़ लिया। टर्म विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर आर लाइक टर्म, वो टर्म जिनके फैक्टर्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4xy है और एक 5xy है। अब यहाँ देख रहे हैं लाइक टर्म्स उन्हें कहते हैं जिनके देखो जिनकी वेरिएबल भी सेम हो, x y और इनकी पावर भी सेम है। पावर का मतलब यहाँ x भी 1, यहाँ भी x 1, यहाँ y भी 1, यहाँ y भी 1। तो जिसमें आपके वेरिएबल सेम हो और यहाँ पावर सेम हो उन्हें बोलते हैं हम लाइक टर्म, और जिनमें वेरिएबल आपकी वेरिएबल अलग हों और उनकी पावर्स अलग हों उन्हें बोलते हैं अनलाइक। यानी कि आप लाइक समझ लो, उसका अपोजिट पर अनलाइक, यानी कि पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ क्या था 4xy, यह हमने किया था यहाँ हमने ले लिया 6xy, ठीक है। अब हमने यहाँ ले लिया 6x स्क्वायर y, यहाँ हमने ले लिया 7y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप यहाँ x की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1, तो ये क्या हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। यहाँ देखिए x की पावर 2, लेकिन यहाँ y x की पावर 1 है, पावर भी सेम होने चाहिए वेरिएबल भी सेम होने चाहिए तभी लाइक होगा, वरना वो अनलाइक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ y की पावर 1 यहाँ y की पावर 2, दैट मीन्स ये क्या है अनलाइक। अनलाइक और लाइक में क्या डिफरेंस है, लाइक के लिए पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज लाइक अनलाइक। अब ये ध्यान रखिए द सम और डिफरेंस ऑफ एनी 2 लाइक टर्म इज लाइक टर्म। कभी भी आप 2 लाइक टर्म को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो हमेशा वो आपका लाइक टर्म ही आएगा, विथ कोफिशिएंट इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द 2 टर्म। दस इसका मतलब ये है कि अगर 8xy है और 3xy इन्हें आप माइनस से प्लस करो तो ये चीज xy तो कॉमन हो गया, एक ही पार लिखेंगे आप और फिर नंबर माइनस करेंगे, यानी कि 8 - 3 5। ओके, अगर यहाँ प्लस होता तो 8 9 10 11 xy हो जाता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब लास्ट पॉइंट देख लीजिए आप इसका, व्हेन वी ऐड 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन like term are added to our unlike term are left as they are, thus the sum of xy 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड दिस देखिए एंड 2x + 3 इज 4x स्क्वायर प्लस 7x + 3। देखिए सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बता देती हूँ, अगर आप 2 अनलाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हो तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये 4xy होता, ये 5x स्क्वायर y होता, तो ये अलाइक है अनलाइक है, अनलाइक टर्म्स है। यहाँ x पावर 1 है या x पावर 2 है, या तो ऑफकोर्स एक ही देख के हमें पता चल गया कि ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स को आप कभी ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि आपको ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। तो here we have completed our introduction part. If you have not understood, so this is my request, please see the video again. In the next video we will start our 12.1 exercise question number 1. Thank you.